آج ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے. امید ہے کہ سنجیدہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس. کہا کہ آبنائے ہرموز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے, اس پر ایرانی کنٹرول قبول نہیں کیا جائے گا. امریکی نیوی نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ روک رکھا ہے. ایران نے جنگ بندی معاہدے کے لیے امریکی تجاویز پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. امریکی تجاویز پر ایرانی قیادت ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچی. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی وضاحت. سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا. مشتبہ خامنائی تمام معاملات اور امور کی مکمل نگرانی رکھتے ہیں. اسماعیل بقائی نے حکمت عملی واضح کر دی. ایران امریکہ جنگ بندی کے جزوی معاہدے کا ابتدائی فریم ورک تیار. پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ, دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرمز کے بحران کا حل, تیسرے مرحلے میں جامع معاہدے پر بات ہوگی. امریکہ اور ایران قلیل المدتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ. مشرق وسطی میں صورتحال پھر سے کشیدہ ہونے لگی. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 بیلسٹک میزائلز اور 3 ڈرون حملے ناکام. حملے کے بعد ایئرپورٹ کے قریب دھوئیں کے بادل. اماراتی حکام نے ملبہ گرنے سے 3 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. متحدہ عرب امارات کی حکومت کا ایران پر حملے کا الزام. امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں, ایک دوسرے پر جنگی خلاف ورزیوں کا الزام. امریکہ کا جزیرہ قشم اور بندر عباس پورٹ پر حملہ. ایرانی فوج نے جوابی کارروائی میں آبنائے ہرموز کے مشرق اور شاہ بہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں کو ٹارگٹ کیا. جوابی کارروائی میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تصویبات کو ہدف بنایا گیا. امریکی سینٹ کام کا بیان. امریکہ نے ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرموز کی طرف بڑھنے والے ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرموز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو ٹارگٹ کیا. ایرانی فوج نے جوابی کارروائی میں آبنائے ہرموز کے مشرق اور شاہ بہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا. ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ کا دعویٰ. ایران نے امریکی بحری بیڑوں پر میزائل داغنے کی ویڈیوز جاری کر دی. ایرانی فوج کے مطابق حملے خطے کے بعض ممالک کے تعاون سے کیے گئے. جب بھی سفارتی حل سامنے آتا ہے, امریکہ فوجی مہم کا راستہ اختیار کرتا ہے. امریکہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے یا کوئی ٹرمپ کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. عباس عراقچی کا سوال. میزائل صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 120% زائد ہونے کا دعویٰ. دباؤ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار. آبنائے ہرموز میں جھڑپوں کے بعد تہران میں فضائی دفاعی نظام متحرک. ایران کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. مسلح افواج کے حق میں اور امریکہ کے خلاف نعرے. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جھڑپوں کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکرات کا دعویٰ. جلد معاہدے کی امید کا اظہار. سمجھوتہ نہ ہونے پر ایران کے خلاف پہلے سے سخت کارروائی کی دھمکی. کہا کہ آبنائے ہرموز میں ایران کو ناک آؤٹ کر دیا گیا. 3 امریکی ڈسٹرائر فائرنگ کے باوجود آبنائے ہرموز سے بحفاظت گزر گئے. حملہ آور ایران کی چھوٹی کشتیوں, میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا. ایرانی قیادت جنونی قرار. ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اب تک استعمال کر ڈالتے. اب ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں مل سکے گا. امریکی صدر نے موقف دہرا دیا. Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پاکستان کی تعریف. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار شخصیات قرار دیا. امریکی صدر نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپریشن پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا گیا تھا. ایران جنگ میں ثالثی پر امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش. ڈیموکریٹ رکن الیگزینڈر گرین نے قرارداد پیش کی. پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی میں مشکلات برداشت کیں. پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ایران کی جانب سے آبنائے ہرموز سے گزرنے پر پابندیوں کی وجہ سے خلیج فارس میں 1500 بحری جہاز اور 20,000 ملاح پھنس گئے. عملہ شدید مشکلات کا شکار. اقوام متحدہ کی میری ٹائم آرگنائزیشن کی رپورٹ.
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए होर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के खिलाफ करारदाद रूस ने वीटो कर दी। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की गई, जिसमें ईरान से आबनाए होर्मुज़ में हमले बंद और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम खित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को लिखे गए खत में करारदाद का मुसव्वदा यक तरफा और नामुकम्मल करार दे दिया। ईरान की तेल की पैदावार और बरामदात बगैर किसी रुकावट जारी हैं। आबनाए होर्मुज़ के सख्त कंट्रोल से मुंसलिक आमदनी के नए सिलसिले तलाश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनजाद ने अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा तेल तनसीबात मरम्मत के बाद फाल करने का दावा कर दिया। पेंटागन के साबिक़ तर्जुमान का अमरीकी फौज में खौफ के माहौल का दावा। जर्नैल बोलने से घबराते हैं, उन्हें खामोश करवा दिया जाता है, बात करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं। अमरीकी फौज के साबिक़ जिम्मेदार जॉन कर्बी ने अमरीकी फौज को मुश्किल सूरत हाल से दो चार करार दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीका के फौजी अड्डों तक रसाई और फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियां हटा दी। ट्रंप इंतजामिया का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की जरूरत पर गौर। सऊदी अरब की अमरीका तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोलने की तरदीद। जारहाना कार्रवाइयों के लिए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। सऊदी ओहदेदार की वजाहत। रियाद की जानिब से कशीदगी कम करने के अज़्म का वादा। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी काविशों की हिमायत का मौक़िफ़ दोहरा दिया। ईरान अमरीका मुआहिदों की खबरों पर सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के धंधे का इंकशाफ। 6 मई को नामालूम ताजिरों ने खाम तेल के 920 मिलियन डॉलर्स के सौदे किए। ये सौदे एक्सियोस के जल्द मुआहिदे से मुतालिक रिपोर्ट की अशात से चंद घंटे कबल किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुताल्लिक़ बहरान में अपनी ही हिकमत अमली के जाल में फंस गए। CNN का दावा। ट्रंप के दावों के तहत ईरान जंग खत्म नहीं हो सकी, वो बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। इस्राइली फौज के हमलों पर हिजबुल्लाह का जवाबी वार। मकामात पर सहूनी फौज टारगेट। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के बैरूत के रिहायशी इलाक़ात पर हमले। कई इमारतों में आग लग गई। हिजबुल्लाह के FPV अटैक ड्रोन इसराइल के लिए दर्द सर बन गए। रिवायती ड्रोन्स के बरअक्स ये रियल टाइम ऑपरेटर्स के जरिए रहनुमाई करते हैं। चलती गाड़ियों और छुपे अहदाफ को बाआसानी टारगेट कर सकते हैं। FPV ड्रोन्स बख्तरबंद गाड़ियों और कमांड पोस्ट के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर हथियार साबित हो रहे हैं। गिरना, उसके साथ साथ भारत का गरूर भी खाक में मिला। उसके बाद जब रिस्पांस की भी बारी आई तो ऐसा रिस्पांस दिया गया कि 4 दिन से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था और ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। 4 दिन से शोर मचाने वाले दुश्मन ने 4 घंटों के अंदर घुटने टेक दिए। राफेल गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। पाकिस्तान को दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता है, भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने बुनियानुम मरसूस के दौरान जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया। पहलगाम बहाना था, पाकिस्तान निशाना था। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का तकरीब से खिताब। कहा कि भारत पहलगाम पर कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। आज पाकिस्तान का हर बच्चा आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहा है। क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क के दिफा के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मुल्क की सलामती मजबूत हाथों में है। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे जवाब बनाकर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। पाक फजाइया ने भारतीय राफेल तैयारे तबाह किए जो आम तैयारी नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में रियाज का नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। मुसल्लह अफवाज को मुल्क की सरहदों का बेहतरीन मुहाफिज करार दिया। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब में फकीदुल मिसाल जश्न। लाहौर की सड़कों पर चिरागां, सड़कें और इमारत सजा दी गईं। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइल के मॉडल वाले फ्लोट्स रमादवा। मार्का हक के 7 से 10 मई तक के वाकयात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई जा रही है।
मतलब क्या? पाक फौज जिंदाबाद। छोटे बड़े शहरों में अवाम का फौज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। हब, हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह में रैलियां। पेशावर में 6 किलोमीटर तवील मैराथन रेस। कराची में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के तहत परचम बरदार रैली निकाली गई। पाकिस्तान के लिए अमन अव्वलीन तरजीह। मार्का हक कौमी तारीख का सुनहरा बाब बन चुका। पाक फजाइया के कारनामे दुनिया के अफवाज के लिए स्टडी केस बन गए। आसमा बुखारी का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। लीग रुकन उज़्मा कारदार ने करारदाद जमा करवाई। जब भी दुश्मन ने ललकारा, अफवाज ने ऐसा सबक सिखाया जो नस्लों याद रखा जाएगा। करारदाद का मतन। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लाहौर में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नून लीग की सरबराह ने इंतखाबी मुहिम के लिए जून के वक्त में आज़ाद कश्मीर जाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान को 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने के लिए आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। तौसीई फंड फैसिलिटी का तीसरा और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दाता दरबार का दौरा। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। तरक्याती मंसूबों का मुआयना। इसहाक डार ने दाता गंज बख्श का मज़ार अमन, रूहानियत, रवादारी और इस्लामी इक़दार का अजीम मरकज़ करार दिया। 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई। हुक्मरानों की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। तरक्की और रोजगार के लिए अमन नागुज़ीर करार। झलमक्सी में M8 पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 अफराद जान बहक, 18 जख्मी हुए। मरने वालों और जख्मियों में बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक कोच खारान से लाड़काना जा रही थी। M8 शाहराह के मकाम पर बेकाबू होकर उलट गई। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी। कराची एयरपोर्ट पर FIA ने जाली शादी सर्टिफिकेट पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बनाकर खातून को ऑफलोड कर दिया। तर्जमान FIA के मुताबिक खातून के दस्तावेजात और इंटरव्यू में तजाद पाया गया। खातून ने कानूनी शादी न होने का एतराफ़ कर लिया। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती नहीं, मुआशी और तरक्याती चैलेंज बन चुकी है। डॉन मीडिया के तहत ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज के सेशंस में ग्लोबल साउथ ताउन, क्लाइमेट स्मार्ट शहर, साफ तवानाई की मुंतकली, निजी शोबे की शमूलियत, मुसावी माहौलियाती इक़दामात और सूबाई सतह पर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी। तुर्बत और नवाबशाह में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी में 42, मुल्तान में 40, रहीम यार खान में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। गज़ा में हमास सरबराह खलीलुल हया का चौथा बेटा भी शहीद। जुलूस जनाजे में हजारों फलस्तीनियों की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारे। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% आलमी दरामदी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। छोटे कारोबारी अफराद ने फरवरी में नाफिज किए गए टैरिफ को अदालत में चैलेंज किया था। अदालती रिमार्क के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ अमरीकी सदर की सरबराही इजलास में शिरकत मुतवक्की है। वजारत दाखिला ने पाकिस्तानियों की UAE से टारगेटेड बेदखली से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। किसी मखसूस मुल्क या फ़िरक़े के खिलाफ डिपोर्टेशन नहीं हो रही, कानून शिकनी पर ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तर्जुमान की वजाहत। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान का बांग्लादेश को बैटिंग की दावत का फैसला महंगा पड़ गया। मैच के पहले रोज मेजबान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बनाए। और ढाका टेस्ट में अब्दुल्ला फजल और राजान ओवैस का इंटरनेशनल डेब्यू। शान मसूद और रिजवान ने नौजवान क्रिकेटर्स को टेस्ट कैप पहनाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मैच देखने के लिए ढाका में मौजूद।